Now we were doing the vibration stress yesterday, and because of resonance, the stress becomes more, and things can break. As I was saying, the critical RPM is a RPM at which your frequency of the vibration of your propeller will match the natural frequency of the ship, and that way the vibration will increase with resonance. Now, to compensate that, on this stern frame, you have this vibration post. So this is your stern frame. This is your rudder, and your propeller is connected here. And this is your rudder stock going through rudder trunk to your steering gear here. We'll be doing stern frame afterwards. And this rudder is unbalanced, which we'll be doing later. What is unbalanced rudder and all we'll be doing later. So this is your stern frame, and this post, your vibration will spread out to your hull. So in ship construction, the main thing is wherever your stresses are, we try to spread it to the hull. Hull is like a Maidan, bada Maidan, where your stresses can spread out. Example, you are walking on the sand, which is wet on the beach. So your feet is going to get embedded in the sand. But if you lie down there, you're not getting embedded because you're spreading your pressure around. If your pressure is at one point, then it is going to embed. So where your stresses are spread out, they are not going to affect the ship. So that's why the vibration post is to spread out your stresses throughout the hull. So hull vibration, as I was saying, can be excited by low engine speed, which is critical RPM. If it is located on or near the node of the critical hull vibration, that is your vibration of the hull. And if the frequency of this vibration coincides with the first or second harmonic of engine excitation, then you are going to have resonance, and that can be disastrous to your ship's engine because it starts breaking off. That's why we never have that critical RPM. Either the chief engineer will try to reduce it below that or increase it above that. It will never be in that telegraph which is marked red, that region. That is critical RPM. Now the structures which compensate your vibration stress on ship are your vibration post, which I have shown you on the stern frame. Then your mountings on the ship will be proper. That is your mountings for your life buoys, mounting for your other things. They'll be proper so that things don't fall off. Sometimes the vibration is also there when your propeller is misaligned. Now propeller is like a fan. So if your fan is misaligned, then you're going to have a lot of noise. अभी एक वीडियो वायरल हुआ था. I was seeing in this news. One of the video was viral where the fan head was rotating like anything, and the guy was a corona victim in I think Bhopal or something. He was saying कि भाई कोरोना से डर नहीं लगता, ये फैन से डर लगता. So if your propeller is misaligned, then your vibration will be excessive. So that has to be corrected in the dry dock. So your exciting forces of frequency close to the natural frequency of the hull should be avoided. Now you have another resonance example is your steam pipes. You know, when your pressure of the steam pipe is more, the steam pipes are there on chemical tankers and tankers or heating coils. Those are heating coils. So if the pressure is more, they start vibrating.
when the vibration is too much, they are going to break the pipes. So then you have to reduce your steam. Similarly, in tankers, when you're pumping cargo, if it is exceeding the pressure, the vibration of the pipelines will start. So if you don't reduce it, then the pipelines are going to break. So you try to reduce the pump RPM so that your vibrations are reduced. Have you understood vibration stresses? Any questions on vibration stress? किसी को क्वेश्चन है तो पूछो. वाइब्रेशन स्ट्रेस में सबको समझ आ गया? यस सर. क्लियर है ना? तो नेक्स्ट स्ट्रेस करते हैं पैंटिंग स्ट्रेस. अब जब फॉरवर्ड रीजन ये वाला रीजन है, जब भी एक क्रेस्ट वेव आती है फॉरवर्ड में, जब हम मूव कर रहे हैं तो वो प्रेशर इंक्रीज हो जाता है और ये the plating will go inside because the pressure increases. And when your trough wave comes, the pressure decreases outside, though the plate will come out. So the changing pressure outside is going to create the panting stresses which are trying to push your opic tank plating inside and coming outside when the pressure is less. So that is panting stress. जैसे कई बार आप बहुत तेज भागते हो तो आपकी सांस फूल जाती है, आपके नोस्ट्रिल्स फूल जाते हैं, सांस बड़ी बड़ी हो जाती है. तो जब आप सांस लेते हो तो नोस्ट्रिल चिपक जाती है, सांस छोड़ते हो नोस्ट्रिल बाहर आती है. दैट इज सिमिलर टू पैंटिंग ऑफ द फोपिक एरिया. दूसरी तरह से समझाता हूँ कि पैंटिंग, एक तो आपको क्रेस्ट एंड ट्रफ से समझाया और एक बर्नौलीज प्रिंसिपल से समझाता हूँ कि कैसे आपके पैंटिंग होती है विद द बर्नौलीज प्रिंसिपल. So two ways I'm going to explain this. One is your crest and trough. Second is Bernoulli's principle. अभी Bernoulli's principle से समझाता हूँ. Now the thing is, यहाँ अगर आप डायग्राम देखो तो आपका जब शिप मूव कर रहा है तो पानी यहाँ आ रहा है, ठीक है. जब पानी आ रहा है और क्रेस्ट वेव आई, क्रेस्ट ऐसे आई और ट्रफ ऐसे आई, तो क्या हुआ, पानी यहाँ लगा और क्रेस्ट आया, तो वहां जो है वेलोसिटी रुक गई, कम हो गई, क्योंकि क्रेस्ट आई तो वेलोसिटी कम हो गई, तो प्रेशर बढ़ गया बिकॉज P into V इज कांस्टेंट. तो प्रेशर जब बढ़ गया तो प्लेटिंग अंदर जाएगी, प्रेशर बाहर बढ़ गया देन इनसाइड द वो पीक, तो प्लेटिंग इज गोइंग टू गो इनसाइड. अब ट्रफ वेव आया, ट्रफ वेव ऐसे आया, तो ट्रफ वेव में बाहर की स्पीड बढ़ गई पानी की, सो द वाटर स्पीड इज इंक्रीज. नाउ पानी की स्पीड बढ़ गई तो क्या हो गया, V ज्यादा हो गया तो प्रेशर बाहर कम हो गया. P into V is constant. ये बर्नौलीज प्रिंसिपल है. P into V is constant. तो वेलोसिटी बढ़ गई, प्रेशर कम हो गया, क्या हो गया, अंदर का प्रेशर बाहर से ज्यादा है, तो दिस प्लेटिंग इज गोइंग टू कम आउट. So this plating going inside and coming out, this process is known as panting. This is a stress here because this opic plating can break off. उसको अवॉइड करने के लिए इस रीजन में, हमारे दोनों रीजन में होता है पैंटिंग, फॉरवर्ड ओपिक एंड आफ्ट पीक में. आफ्ट पीक में कम होता है, फोपिक में ज्यादा होता है, बिकॉज हमारी वेव्स ओपिक से आती है, पीछे से नहीं आ रही, आगे से आती है ज्यादातर. तो हमारे ऐसे बीम्स लगे होते हैं अंदर में जो इसको अंदर दबने से रोकते हैं. सो दैट इज पैंटिंग बीम्स
और जिससे कनेक्टेड एरिया है उसको हम पैंटिंग स्ट्रिंजर कहते हैं, और दिस फॉरवर्ड पोर्शन इज नोन एज ब्रेस्ट हुक। ये सारी चीजें कंपनसेट करती हैं पैंटिंग को। ऑल दीज थ्री थिंग्स आर कंपनसेटिंग योर पैंटिंग। अब मैं आपको 4P का भी डायग्राम दिखाऊंगा, मेक यू अंडरस्टैंड के। एक और मैं डायग्राम यहाँ दिखा रहा हूँ आपको। क्रेस्ट आ गया बर्नौलीज प्रिंसिपल के कारण, क्योंकि यहाँ वेलोसिटी कम होगी, प्रेशर बढ़ गया, ये दबेगा अंदर, तो ये अंदर दबेगा। अब ट्रफ आया, वेलोसिटी बढ़ गई, प्रेशर कम हो गया, ये प्लेटिंग बाहर आ गई। तो इनको रोकने के लिए हमारे पैंटिंग बीम्स हैं, और आगे में ब्रेस्ट हुक है, साइड में पैंटिंग स्ट्रिंजर। So I'll show you one of the diagrams of four-peak tank. ये तो बाद में भी दिखाएंगे, लेकिन अभी भी दिखा देते हैं so that you understand कि कैसे लगा हुआ है। ये लगाने के पड़ेंगे, ये आपका फोर-पिक टैंक है। सो फोर-पिक टैंक में ये आपका फॉरवर्ड कोलिजन बल्कहेड है, जिसपे स्टिफनर लगे हैं, दिस इज योर चेन लॉकर, इसके ऊपर भी स्टिफनर लगे हैं। ये आपका फ्रेम्स आएगा, फ्रेमिंग में आपको फ्रेशर्स के बाद कराऊंगा। ये आपका पैंटिंग स्ट्रिंजर है, और इसमें ये कनेक्टेड है पैंटिंग बीम, और यहाँ ब्रेस्ट हुक है। तो ये जब दबेगा, पैंटिंग बीम, पैंटिंग स्ट्रिंजर, ब्रेस्ट हुक इसको दबने से रोकेंगे। सो दे कंपनसेटिंग द पैंटिंग अरेंजमेंट है, पैंटिंग स्ट्रेसेस को कंपनसेट करते हैं। दिस इज योर वॉश बल्कहेड फॉर रिड्यूसिंग एफएससी। ये सब डिटेल में बाद में भी करेंगे हम। So panting is a tendency of the steel hull to flex in and out like an oil can being squeezed when your ship is pitching. So this occurs when your ship is making headway. आप एंकर पे हो तो इतनी पैंटिंग वेंटिंग नहीं होगी, बट आपकी हेडवे होगी तभी आपकी पैंटिंग होगी। और जितनी ज्यादा वेव्स होगी, उतनी ज्यादा हाई वेव्स होंगी, उतनी ज्यादा पैंटिंग होगी। So the panting creates significant stress on the ship's hull. It is very dangerous. अगर आपके स्ट्रक्चर्स टूट जाएं तो आपकी शिप की प्लेटिंग ही टूट जाएगी, and can result in flooding and separation of the hull and deck. It occurs in your four-peak region as well as R-peak region. But four-peak tank area में panting stresses will be more as compared to R-peak region. We'll be doing detail of panting stresses afterwards. अब ये रिडक्शन ऑफ पैंटिंग स्ट्रेसेस में कैसे कैसे होगा, इसकी डिटेल हम बाद में करेंगे, क्योंकि अभी आपने स्ट्रक्चर किए नहीं है, तो हम बाद में इसको कराएंगे। ये वाले डायग्राम एग्जाम में आते हैं, ये बाद में कराएंगे। दिस इज फोर-पिक टैंक, दिस इज द पैंटिंग अरेंजमेंट। अभी सिर्फ डेफिनेशन करा रहे हैं, डिटेल में जब कराएंगे तो वील कम टू दीस थिंग्स।
Now we come to pounding. Pounding literally मतलब कूटना, मसाला कूट रहे हैं, पाउंड हो रहा है. कपड़े धुलते हैं, पाउंड हो रहे हैं. उसी तरह शिप की भी धुलाई होती है भाई. व्हेन यू आर इन योर लाइट बलास्ट कंडीशन, सपोज आगे का ट्रैप 3 मीटर 4 मीटर है, तो 4 मीटर या 3 मीटर है, तो बाव आपका निकल आता है पानी से बाहर एंड स्लैम्स बैक बड़े जोर से. उसके बाद काफी वाइब्रेशन होती है. सो दिस स्लैमिंग इज नोन एज पैंटिंग, सॉरी पाउंडिंग. पैंटिंग तो आपको बता दी. दिस स्लैमिंग डाउन इज नोन एज पाउंडिंग. So the heavy pitching assisted by heaving as a whole ship is lifted in a seaway, and when a vessel slams down on water is known as pounding or slamming. तो पाउंडिंग जो होती है वो बॉटम में होती है, शिप साइड में नहीं होती, बॉटम में होती है. तो फॉरवर्ड रीजन में जो एरिया है फॉरवर्ड कोलिजन बल्कहेड के पीछे, दैट सेक्शन इज स्ट्रेंथन. डीबी सेक्शन बॉटम में स्ट्रेंथनिंग होती है. So this area at the DB is subjected to severe blows from the sea, and the greatest effect of pounding is when your ship is light. तो इस रीजन में आपकी पाउंडिंग होती है, ये वाले रीजन. तो अगर ये हमारा कोलिजन बल्कहेड एरिया है और ये रीजन जो है हमारा फॉरवर्ड परपेंडिकुलर है, तो कोलिजन बल्कहेड जो होता है एलबीपी का 5% से 7.5% पीछे होता है. तो 5% to 7.5% ऑफ एलबीपी. हम डिटेल में फिर से कराऊंगा. आफ्ट ऑफ फॉरवर्ड परपेंडिकुलर, और इससे पीछे 25% ऑफ एल और 30% ऑफ एल पीछे एक इमेजिनरी लाइन होती है. इन दोनों के बीच में इधर में पाउंडिंग होती है बॉटम में. पैंटिंग आपके ऊपर होती है यहाँ वाटर लाइन पे, ये पैंटिंग एरिया है, और पाउंडिंग एरिया शिप्स बॉटम में होता है between the forward collision bulkhead and an imaginary line which is 25%, 30% of LBP aft of forward perpendicular. ये इमेजिनरी लाइन है, यहाँ कोई बल्कहेड नहीं है, इमेजिनरी लाइन है. इस एरिया को हम स्ट्रेंथन करते हैं, हाफ हाइट गर्डर और कई चीजें लगाते हैं. इसकी बॉटम प्लेटिंग भी थिक होती है, मच थिकर, एंड गर्डर भी ज्यादा लगाते हैं. विल कम टू गर्डर जब नेक्स्ट फ्रेमिंग में आएंगे. देन विल डू द स्ट्रक्चर्स ऑफ द शिप एंड द गर्डर एंड ऑल्सो करेंगे. तो पाउंडिंग होती है when heaving or pitching, the forward end heaves, re-enters the water with a slamming effect. Flat areas of plating, that is the bottom plating, are brought into violent contact with water at a very acute angle. कई बार आप ऊपर से, जब आपने डाइविंग टेस्ट किया था तो स्विमिंग पूल में ऊपर से छलांग मारते हैं ना, आप डाइव कर लिया तो ठीक है, लेकिन छाती के बल पे गिरोगे तो वो स्लैमिंग होता है या पाउंडिंग होता है. उसी तरह जहाज भी ऐसी स्लैम हो जाता है. तो इफ यू फॉल ऑन योर चेस्ट इन वाटर व्हेन यू डाइव फ्रॉम टॉप, पूरा लाल हो जाता है. तो सिमिलरली शिप जब पाउंड होता है वो पूरा बॉटम में उसका इफेक्ट होता है. So there's a loud bang and the ship shudders. Momentum of the ship receives a check. Energy is imparted to the ship's girder to make it vibrate. So this is known as pounding, and this is result of dynamic forces, which is the sea area. अब इसकी एडिशनल स्टिफनिंग हम बाद में करेंगे. और ये वाली जो इसके डायग्राम्स हैं वील डू आफ्टरवर्ड्स, जब आपको शिप के स्ट्रक्चर समझाएं. अब आता है एक और स्ट्रेस विच इज नोन एज डिसकंटिन्यूटी स्ट्रेस.
मैनुअल बेटा आपके शेप क्या होता है मैनुअल का? आपका मैनहोल जो जहाज पे है उसका क्या शेप होता है? स्क्वायर होता है? ओवल। स्क्वायर में कर्वी एजेस सर। स्क्वायर होता है? स्क्वायर देखा आपने? ओवल। क्यों नहीं होता ओवल शेप। स्क्वायर? इलेप्टिकल शेप इसलिए होता है क्योंकि वो डिसकंटिन्यूटी स्ट्रेस को अवॉइड करता है। अब ये डिसकंटिन्यूटी स्ट्रेस आपको बताते हैं क्या चीज है। अब ये आपने हैच कटिंग की है जहाज पे, हैचेस की, सब में कंटेनर शिप है, जनरल कार्गो हैचेस ऐसे कटे हैं या बल्क कैरियर में। तो या तो अगर हमें डिसकंटिन्यूटी स्ट्रेस, अगर हमने इसको रेक्टेंगल में नहीं काटा होता और सिर्फ एलिप्टिकल किया होता, राउंड किया हो जाता, तो कार को फंस जाता। तो हमें इसको एलिप्टिकल नहीं काटना होता क्योंकि हमें कार्गो को डिस्चार्ज करना है। लेकिन अगर हमने इसको स्क्वायर काटा या रेक्टेंगल काटा तो इस कॉर्नर पे स्ट्रेस हो जाएगा, ये लाल लाल कॉर्नर है, ये डिसकंटिन्यूटी स्ट्रेस होता है। अगर एक सीधी चीज जा रही है उसको सडनली आप ब्रेक करोगे तो डिसकंटिन्यूटी हो जाती है ना। जैसे आप उस पे करते हो बॉन्डिंग वायर आपकी टूट गई तो डिसकंटिन्यूटी हो जाएगी। अगर आपकी वायर में, कार में कॉपर की वायर बीच में से टूट गई तो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो, डिसकंटिन्यूटी हो जाती है। सिमिलरली अगर आपके एक लेवल चल रहा है और सडनली आपने उसको एंगल चेंज कर दिया 90 डिग्री, सीधा जा रहा है 90 डिग्री चेंज कर दिया, तो यहाँ डिसकंटिन्यूटी हो जाएगी, वहां क्रैक आ जाएंगे। तो आपको समझाता हूँ डिसकंटिन्यूटी कैसे होता है, उसके बाद डायग्राम्स पे आएंगे। सपोज एक वायर ऐसे जा रही है, ठीक है, अब हमने इसको ब्रेक कर दिया बीच में तो डिसकंटिन्यूटी होगी, इसमें तो इलेक्ट्रिसिटी पास ही नहीं होगी। ठीक है, इसमें तो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी। अब क्या है, अगर हमने सपोज एक इतना बड़ा प्लेट है उसमें हमने ऐसे कटिंग कर दी और जहाज पे लगा दी तो यहाँ डिसकंटिन्यूटी हो जाएगा, ये पॉइंट पे डिसकंटिन्यूटी हो जाएगा, इस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूटी हो जाएगा, इस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूटी हो जाएगा, यहाँ क्रैक आ जाएंगे, इस एरिया में क्रैक आ जाएंगे, मतलब ये वाले पॉइंट्स पे क्रैक आ जाएंगे। ठीक है, इन पॉइंट्स पे क्रैक आ जाएंगे क्योंकि यहाँ डिसकंटिन्यूअस है। तो हम क्या करेंगे, हम उसमें क्या करेंगे, अब हम करेंगे कि भाई सपोज हमें कटिंग करनी है मैनहोल की, तो हम उसको तो या हम राउंड भी कर सकते हैं, लेकिन राउंड में हमारे स्ट्रेसेस इतने कम नहीं होंगे जितने एलिप्टिकल में कम हो जाएंगे। एलिप्टिकल में हमारे स्ट्रेसेस कम होते हैं, राउंड में भी कम हो जाएंगे, लेकिन फिर मैनहोल के अंदर हम फंस सकते हैं। अगर राउंड हो तो हम उसने एलिप्टिकल किया कि हम टेढ़े होकर एससीबी पहन के जा सकते हैं, राउंडेड होगा तो एससीबी पहन के जाके फंस जाएगा। तो हमने उसको एलिप्टिकल कर दिया कि अगर हम, कोई मोटा बंदा जा रहा है, यू कैन टर्न अराउंड एंड गो इनसाइड, इसमें जा रहा तो फंस जाएगा, इसलिए वो एलिप्टिकल है। क्योंकि कोई स्ट्रेसेस फिर यहाँ कहीं भी नहीं आ रहा है क्योंकि वो कंटिन्यूस ऐसे घूम रहा है, कोई डिसकंटिन्यूटी नहीं है, लेकिन इसमें डिसकंटिन्यूटी आ रहा है। तो यहां तक समझ आ गया, यहां तक समझ आ गया डिसकंटिन्यूटी क्या है? यस सर। यहां समझ आ गया? यस सर। तो पहले बेसिक कंसेप्ट समझना चाहिए, डिसकंटिन्यूटी क्या है, उसके बाद समझाएंगे डिसकंटिन्यूटी स्ट्रेस क्या है। अब हमारे जो हैच कॉर्नर्स हैं, यहाँ आपका बीम जा रहा है और यहाँ गर्डर जा रहा है, तो इन दोनों को बीच में हम मिलाते हैं, एक गसेट प्लेट नीचे लगा देते हैं। गसेट प्लेट बेसिकली आपको दिखाते हैं एक और डायग्राम से, वो डायग्राम उतने अच्छे नहीं थे पहले। सपोज हमारी एक प्लेट ऐसे जा रही है और एक प्लेट ऐसे जा रही है, ठीक है, अब हम इनको जोड़ सकते हैं,
कैसे जोड़ेंगे? क्योंकि यहाँ कॉर्नर में स्ट्रेस आ सकता है ना, क्योंकि हमने जोड़ लगाया है हैच कॉर्नर में, तो ये एरिया क्रैक कर सकता है। तो हम इसको अवॉइड करने के लिए नीचे एक प्लेटिंग लगाते हैं ऐसे करके। ये प्लेट लगा दी हमने, और इस प्लेटिंग में हमने या तो इसमें वेल्ड कर दिया या रिवेटिंग कर दी। यहाँ दो दो रिवेट मार दिए, यहाँ हमने रिवेट मार दिए, यहाँ रिवेट मार दिए। तो ये जो प्लेटिंग बनी, मतलब ये पूरी प्लेटिंग, आपको इसको कलर डालते हैं, देखते हैं कोई कलर लगता है। ये पूरा ही हो गया। कहीं गैप आ गया क्या? हाँ, वहां गैप। तो ये जो प्लेट लगी इसके ऊपर, ये इस एरिया में, ये पूरा नहीं। ये जो रेड वाली प्लेट लगी, इसको हम कहते हैं गसट प्लेट। अगर मैंने सारे कलर्स लगा दिए यहाँ, ये आपके, तो ये वाली आपकी जो प्लेट है, इसको भी लाल कर देते हैं, उसको पूरा करें, इसका भी लाल भी। तो ये जो लाल प्लेट लगी है, इसको हम कहते हैं गसट प्लेट। तो ये डिसकंटिन्यूटी स्ट्रेस को रोकती है, बिकॉज आपका स्ट्रक्चर क्या है, ये स्ट्रेसेस यहाँ जो कॉर्नर पे आ रहे थे इस पे फैल जाएंगे। So this is known as gusset plate that avoids your discontinuity stress. ठीक है, तो ये वाले आपके हैच बीम है इसमें, और ये आपका गडर हो गया। तो ऐसे कॉर्नर्स पे आपकी गसट प्लेट लगती है। कई बार डेफिनेशन आता है व्हाट इज गसट प्लेट। तो ये गसट प्लेट बेसिकली डिसकंटिन्यूटी स्ट्रेस को कंपनसेट करती है। ये डायग्राम बना लो आप अपने लिए, बनाना तो बना लो, या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बना लिया सबने?
यस सर। ओके, अब सारे आपके सारे टाइप के डिसकंटिन्यूटी स्ट्रेस अब करेंगे। तो ये गसर प्लेट ऐसी ही होती है जैसे अभी पतंग है, पतंग के पीछे तीले लगे हैं ना, उसके पीछे हम कागज लगाते हैं सपोर्ट करने के लिए, लाल कलर का कागज लगा दिया तो वो पतंग को सपोर्ट करती है। फिर आपको रेलवे के ब्रिज में भी ऐसे गसर प्लेट मिलेंगे, आपको दिखाएंगे बाद में डायग्राम्स कि वो गसर प्लेट क्या होती है, रेलवे ब्रिज पे कैसे होते हैं वो मैं बाद में दिखाऊंगा। अब दूसरा एग्जाम्पल का डिसकंटिन्यूटी स्ट्रेस का एग्जाम्पल आपको दिखा रहे हैं। कि दूसरे रीजन में सपोज ये आपकी ब्रेक ऑफ अकोमोडेशन है, यहाँ भी डिसकंटिन्यूटी होता है क्योंकि पीछे आपका इंजन रूम एरिया और अकोमोडेशन है, ये मेन कार्गो एरिया है। तो ब्रेक ऑफ अकोमोडेशन में कई शिप्स ऐसे डूब गए हैं जो इधर से टूटे इधर से टूटे टूटे अलग अलग टूट के गिरे। तो ब्रेक ऑफ अकोमोडेशन में ज्यादातर टूटते हैं बिकॉज वहाँ डिसकंटिन्यूटी स्ट्रेस है, तो वेल्डिंग वहाँ अच्छी करनी चाहिए अदरवाइज टूट के गिरेंगे। एक और रीजन जहां आपका डिसकंटिन्यूटी होता है, जो शिप की रेलिंग ये जा रही है और यहाँ एक बुलवर्क होता है जहां आपका रोप्स पास करती हैं, फेयर लीड है आपके, तो ये फेयर लीड से हम रोप पास करते हैं, तो ये जो रीजन है शेयर स्ट्रेक से उठा हुआ जो प्लेट है इसको बुलवर्क कहते हैं। यहाँ नॉर्मली कई बार सीढ़ियां उतरते हैं तो यहाँ साइड में कवर होता है लगा हुआ इस तरफ, और यहाँ फेयर लीड लगी है, तो दिस इज बुलवर्क। और बुलवर्क के साथ जहां कनेक्ट करता है रेलिंग, वहां डिसकंटिन्यूटी होती है कि वो बुलवर्क एक्सटेंड नहीं हो रहा पूरे जहाज पे, यहाँ रेलिंग हो रही है। तो इस रीजन में भी डिसकंटिन्यूटी स्ट्रेस होता है जहां बुलवर्क और रेलिंग ज्वाइन करती है। ये तो हो गई तीसरी जगह। फिर आपका नीला वाला जो है वो लॉन्जिट्यूडनल बल्कहेड है, फोरनाफ जाता है। जैसे ये शिप है तो ये वाले बल्कहेड्स को हम लॉन्जिट्यूडनल बल्कहेड कहते हैं और ये वाले बल्कहेड को ट्रांसवर्स बल्कहेड कहते हैं। ऑरेंज वाला ट्रांसवर्स बल्कहेड है, नीला वाला लॉन्जिट्यूडनल बल्कहेड है। जहां ज्वाइन करते हैं इस पॉइंट्स पे, ये वाले पॉइंट्स हैं, इनकी वेल्डिंग अच्छी करनी चाहिए क्योंकि यहाँ डिसकंटिन्यूटी स्ट्रेस है, ये जुड़ा जा रहा है यहाँ से, तो यहाँ जोड़ लग गया तो यहाँ मतलब डिसकंटिन्यूटी स्ट्रेस होगा, तो वेल्ड अच्छा करना पड़ता है। तो ये तो चौथा एग्जाम्पल हो गया। पांचवा एग्जाम्पल, ये आपका ट्रांसवर्स बल्कहेड है और ये वाले लॉन्जिट्यूडनल पास करते हैं। लॉन्जिट्यूडनल कंटिन्यूस होते हैं, लॉन्जिट्यूडनल में ब्रेक कोई नहीं लगता क्योंकि लॉन्जिट्यूडनल में ब्रेक हो जाएगा तो जहाज क्रैक कर सकता है जहां ब्रेक हुआ। लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेंथ देता है वो, हम जब हम करेंगे लॉन्जिट्यूडनल गर्डर सब करेंगे तो और क्लैरिफाई करेंगे। तो लॉन्जिट्यूडनल जब बल्कहेड से पास करता है तो वहां कट लगाना पड़ता है या वी नॉच लगाना पड़ता है, और इस एरिया में क्योंकि कट किया गया है यहाँ क्रैक हो सकते हैं, इसलिए यहाँ वी नॉच कॉर्नर लगाते हैं। ये वी नॉच कॉर्नर लगाते हैं डिसकंटिन्यूटी स्ट्रेस को अवॉइड करने के लिए। तो ये 5 एग्जाम्पल हैं डिसकंटिन्यूटी स्ट्रेस के। अब इसकी थ्योरी करते हैं।
So whenever there is a sudden discontinuity of structure, stresses will build up in that region. पहला एग्जांपल दिखाया था आपको डायग्राम के साथ in way of hatch opening. In dry cargo ships, टैंकर में नहीं, जनरल कार्गो कंटेनर शिप्स में, large openings have to be cut on deck so as to allow cargo to be loaded and discharged quickly and easily. Now, because your deck is continuous forward and aft, to and fro means forward and aft, this opening becomes sudden discontinuity, and therefore you have to strengthen this region with gusset plate to compensate for your local stresses. ये अलग अलग रीजन्स में डिसकंटिन्यूटी स्ट्रेस है, उसको हम कैसे रोकते हैं, ये सब उसके डायग्राम, बट आप उस पर नहीं करो, जितने मैंने आपको दिखाए वही बहुत है. रेलवे ब्रिज आपने देखा होगा, रेलवे ब्रिज में ऐसे स्ट्रक्चर लगे होते हैं, देखे हैं? रेलवे ब्रिज जब पास करते हैं तो ऐसे स्ट्रक्चर लगे होते हैं, इसी को गसट प्लेट कहते हैं. आपको और डायग्राम दिखाते हैं, इसमें और डायग्राम है कि नहीं? नहीं, वही डायग्राम है. वो रिवेट लगा होता है ऐसे, यहाँ रिवेट होते हैं, सारे रिवेट लगते हैं. इनफैक्ट मेट्रो ब्रिज के नीचे से भी देखोगे तो आपको गसट प्लेट दिखेंगी, जहाँ रिवेटिंग लगी हुई है, जहाँ ये स्ट्रक्चर्स ज्वाइन करते हैं, 3-4 स्ट्रक्चर ज्वाइन करते हैं, तो उनको जोड़ा जाता है इन गसट प्लेट, सो दैट यहाँ स्ट्रेसेस बिल्डअप ना हो. ये पूरा लोड ले लेती है गसट प्लेट इन सारे मेंबर्स का. फिर ब्रेक ऑफ अकोमोडेशन दिखाया था आपको. So the forward end of the accommodation superstructure comes to abrupt end and has to be strengthened by additional welding. So break of accommodation में additional welding करनी पड़ेगी. नंबर 3, जब बुलवर्क ज्वाइन करता है रेल को, मतलब शिप की रेलिंग्स को ज्वाइन करता है, तो बुलवर्क सडनली एंड हो जाता है, तो वहां डिसकंटिन्यूटी स्ट्रेस होती है और वहां आपको एक्स्ट्रा वेल्डिंग लगानी पड़ती है. चौथा आपको बताया था, जहां आपके लॉन्जिट्यूडनल मीट करते हैं ट्रांसवर्स बल्कहेड को, या जहां आपके लॉन्जिट्यूडनल बल्कहेड मीट कर रहे हैं ट्रांसवर्स बल्कहेड को, वहां भी डिसकंटिन्यूटी स्ट्रेस है. ये लॉन्जिट्यूडनल पास कर रहे हैं बल्कहेड के थ्रू, वहां डिसकंटिन्यूटी स्ट्रेस है. ये आपकी स्ट्रिंजर प्लेट्स हैं, ये वाली जो प्लेट है, ये आप बाद में आपको कराएंगे. ये स्ट्रिंजर प्लेट्स हैं, ये आपकी बीम्स है, ये सब आपको बाद में कराएंगे. ये साइड में फ्रेम्स लगे होते हैं. ये लॉन्जिट्यूडनल, सॉरी ये बीम नहीं है, लॉन्जिट्यूडनल बीम्स ऐसे जाएंगे, और ये लॉन्जिट्यूडनल 4.5, और ये स्टिफनर्स लगे हैं बल्कहेड में. ये स्ट्रिंजर प्लेट, इसकी डिटेल हम बाद में कराएंगे. तो जहां आपके लॉन्जिट्यूडनल बल्कहेड मीट कर रहे हैं ट्रांसवर्स बल्कहेड को, वहां भी आपकी डिसकंटिन्यूटी स्ट्रेस है, जहां एडिशनल वेल्डिंग करानी पड़ेगी. तो ये आपके अप्रूम बल्कहेड है, ये लॉन्जिट्यूडनल बल्कहेड को मीट कर रहा है, तो यहाँ भी स्ट्रेस होगा इन पॉइंट्स. जहाँ जॉइंट है वहां आपकी डिसकंटिन्यूटी स्ट्रेस होगा. अब हमारी दो फोर्सेस, दो आपके स्ट्रेस बचे हैं, शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट. तो पहले आपको शियर फोर्स समझाएं. अगर दो फोर्सेस ऐसे लग के इसको काट रही हैं तो उनको शियर फोर्स करते हैं, अगर हम ऐसे काट रही हैं तब भी शियर फोर्स कहते हैं. तो आपको जरा शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट समझाते हैं दूसरे डायग्राम से.
नाउ सपोज ये आपका एक कील लगी है दीवार में और आप ऊपर से थोड़ा मार रही हो, हिटिंग अ हैमर फ्रॉम टॉप। यहाँ से दिस इज योर वॉल एंड यू गॉट अ नेल एंड यू हिटिंग फ्रॉम टॉप, तो राइट साइड आपका नीचे जा रहा है, लेफ्ट साइड आपका इधर दीवार पे लगा है, सो दैट इज द शेयर फोर्स। राइट साइड अगर नीचे जा रहा है और लेफ्ट साइड दीवार पे लगा हुआ है, दैट इज शेयर फोर्स विच इज पॉजिटिव। अगर वही नेल यू आर हिटिंग फ्रॉम बिलो with a hammer, this end will be stuck to the wall and this end will be cut off, so this is a negative shear। तो ये पॉजिटिव शेयर है, या राइट साइड आपका नीचे जा रहा है और लेफ्ट साइड अगर ऊपर जा रहा है, राइट साइड ऊपर जा रहा है, लेफ्ट साइड नीचे है रहेगा, दैट इज नेगेटिव। तो सपोज हमारे शिप पे लोडिंग अलग अलग की है, इस होल्ड में कम किया, इस होल्ड में ज्यादा किया, इस होल्ड में कम किया, इस होल्ड में ज्यादा, इस होल्ड में कम किया। सो हियर द फोर्स ऑफ बॉयंसी विल बी मोर देन ग्रेविटी, ऊपर फोर्स जाएगी, यहाँ ग्रेविटी इज मोर देन बॉयंसी, ऐसे जाएगी नीचे। सो दिस विल बी अ पॉजिटिव शेयर, दिस विल बी नेगेटिव शेयर। एक्ट किसके ऊपर कर रही है, ये आपके बल्कहेड पे कर रही है। सो पॉजिटिव शेयर, नेगेटिव शेयर। सिमिलरली ये वाला नेगेटिव शेयर, ये पॉजिटिव शेयर, ये नेगेटिव शेयर। सो द शेयर फोर्सेस एक्टिंग ऑन योर बल्कहेड हियर, जो बल्कहेड के ऊपर एक्ट कर रही है, जो नीचे जा रहा है वो पॉजिटिव है, जो ऊपर जा रहा है वो नेगेटिव है। आपको दो और डायग्राम से समझाते हैं। सर ये पॉजिटिव और नेगेटिव किस बेसिस पे डिपेंड करता है? आप किसी को भी पॉजिटिव ले सकते हो, बट जो बेसिक हम लेते हैं वो राइट साइड नीचे जा रहा है तो उसको हम पॉजिटिव लेते हैं, लेफ्ट साइड और राइट साइड ऊपर जा रहा है तो नेगेटिव लेते हैं। शेयर फोर्स ऐसी भी रहता है, सपोज आपकी किताब है बहुत मोटी, बाइंडिंग नहीं की आपने, सपोज एक 500 पेजेस की एक ढेर लगा दी और आपने ऊपर हाथ रखा, तो आगे का सेक्शन इस तरफ जाएगा और पीछे का सेक्शन इधर जाएगा। कभी देखा है आपने हाथ रख के? बड़ी मोटी किताब के ऊपर हाथ रख दिया, थोड़ा प्रेशर डाला तो आगे का सेक्शन इधर जाएगा और पीछे का सेक्शन इधर, इसको भी शेयर फोर्स ही कहते हैं। एक सेक्शन इधर जा रहा है, एक सेक्शन इधर जा रहा है, तो फोर्स ऐसे लग रही है और एक सेक्शन इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है। या ऐसे भी लग सकती है, एक्सिस इधर है और डायरेक्शन उनके चेंज हो गए, तो जो सर ये ऊपर जा रहा है, हाँ क्या बोल रहे हैं? बुक वाली में सर ये नेगेटिव कौन सा है, पॉजिटिव? नीचे वाली पॉजिटिव है ना? नहीं, वो बुक वाला हम लेंगे नहीं, क्योंकि बुक वाला हम शिप पे यूज नहीं करते ना। हम तो ये वाला लेंगे क्योंकि शिप पे हम ये यूज करते हैं ना, ये वाला हम बुक वाला नहीं लेंगे। ये तो समझाने के लिए बता रहे हैं कि शेयर फोर्स क्या, लेकिन Yes, sir. हमको जब बेंडिंग मोमेंट लेना होता है, अभी बेंडिंग मोमेंट कराएंगे आप, तो जो ऊपर जा रहा है हम उसको नेगेटिव लेते हैं, नीचे जा रहा है तो पॉजिटिव लेते हैं। अब आपको बेंडिंग मोमेंट कराएंगे इसके बाद, जरा आपको पहले शेयर फोर्स पूरा समझा देंगे, फिर बेंडिंग मोमेंट करवा रहे हैं। आज थ्योरी नहीं करा रहे, आज सिर्फ डायग्राम से समझा रहे हैं, थ्योरी अगली बार कराएंगे, क्योंकि थ्योरी में समझ कुछ आएगा नहीं, इसी से समझ आएगा, थ्योरी से कुछ समझ नहीं आएगा। जो मैंने डायग्राम बनाया उसी से समझ आएगा, किताबों से कुछ समझ आता नहीं वैसे भी। तो आपने कील को हथौड़ा मारा, ये नीचे जा रहा है, पॉजिटिव है, नीचे से हथौड़ा मारा, ये वाला साइड ऊपर जा रहा है, नेगेटिव, ये नीचे जा रहा है पॉजिटिव, ये ऊपर जा रहा है नेगेटिव। कहाँ लग रहा है? बल्कहेड पे, लाल लाल बल्कहेड पे लग रहा है। ठीक है, ये एक और डायग्राम से समझा रहा हूँ, और एक और डायग्राम है यहाँ, फिर अब मैं बेंडिंग मोमेंट पे आऊंगा। ये शेयर आपको बताया था, शेयर क्या था, व्हाट इज शेयर, क्योंकि एग्जाम में आता है SHEAR, तो ये लिखना है। और अगर शेयर आए तो पॉजिटिव शेयर आपका फॉरवर्ड शेयर, हाफ शेयर, अपवर्ड बेंडिंग ऑफ द fore and aft of your upper deck in the longitudinal direction is known as shear। ठीक है, एंड दिस इज अ फोर्स, SHEAR। तो ये एग्जाम के लिए दिखाने के लिए कि ये शेयर है और ये शेयर है, दोनों के प्रोनाउंसिएशन सेम है, बट इसमें एक लेटर चेंज हो जाता है, इस पे ध्यान देना। इसको आप जरा स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि एग्जाम में ये आ जाता है तो आप ये सारा लिख देते हो, शेयर लिख देते हो। तो शेयर अगर आए तो ये लिखना है,
SHEE आ रहा है तो वो शेयर लिखना है। जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये जरूरी है, लिखो स्क्रीनशॉट लो इसका। ले लिया। तो ये Excuse me, आपको sir. क्लैरिफाई करने के। हाँ बोलो, सर एक मैसेज दे दूं बच्चों को सर? क्या क्या दे, छुट्टी दे दें? नहीं मैं कह रहा हूँ उनको ना, इनके बाद इनका ना सेल्फ स्टडी का पीरियड है, तो प्लीज ये लॉगिंग रहें, लॉग ऑफ ना करें। ठीक है भाई, वैसे भी अब चाय का टाइम होने वाला है और बेंडिंग उसके मोमेंट बाद अगली बार कराएंगे। अरे संजीव, तुम्हारी तबीयत ठीक है? हाँ संजीव भाई, बाकी सारे बैठ गए, मैं क्या बाकी सारे बैठ गए, तुम्हारी तबीयत ठीक है कि नहीं? मैं ठीक हूँ सर, ओके रिपोर्ट है। हाँ, क्यों तुम टेस्ट करा गया? हम तो निकल ही नहीं, तुम टेस्ट करा क्या? सर कराना जरूरी है सर। क्यों, जुकाम हो गया था क्या? नहीं सर, थोड़ा लग रहा था थकान सी। अरे ज्यादा टेंशन नहीं लो, बुखार वो टेंशन से भी बुखार हो जाता है, घबराओ नहीं। जी सर। टेंशन लेते हो ना तो टेंशन से भी बुखार हो जाता है, जो टेंस नहीं हो। ठीक है सर। हाँ स्टूडेंट चलो प्लीज भाई, लॉगिंग रखना। बच्चा लोग छुट्टी का टाइम, अभी आपका चाय का टाइम है, इसके बाद आपका वो बता रहे हैं संजीव जी कि आपकी इसकी बाद की क्लास सेल्फ स्टडी की है, तो लॉग इन करके रखना, लॉग ऑफ नहीं करना, ठीक है? ओके सर। ओके देन, अगली क्लास में बेंडिंग मूवमेंट समझाएंगे। ओके सर। ओके, थैंक यू सर। ओके जी। थैंक यू सर।